Now earlier what we studied about the tribals. Tribals are the people who live in the forest. They totally depend Forest. on the forest for their survival. Forest are the source of their livelihood. There, they are No, the, ma'am. Ma'am, we have to read from page 45. yes, I know we have to read from the page number 43, but I am recalling what I have explained earlier. Ma'am, 45. Okay, then how did colonial rule affect tribal lives? Now we have studied about the tribal peoples, then we studied as the British started to administer India. They administer India in their own way. They have changed all the laws which were earlier prevailing in our country. So they have also done a lot of changes with the tribal people. Now, what happened to the tribal chiefs? First, before the arrival of the British, in many areas, tribal people chiefs were important people. They enjoyed a certain amount of economic power and had the right to administer and control their territories. In some places, they had their own police and decided on the local rules of land and forest management. Under British rule, the functions and the powers of the tribal chiefs changed considerably. They were allowed to keep their land titles over a cluster of villages and rent out lands. But they lost much of their administrative power and were forced to follow laws made by the British official in India. They also had to pay tribute to British and discipline the tribal groups on behalf of the British. But as the British, they started to administer India in their own way. They changed all the laws of the forest. Earlier, the tribal people who lives in the forest, they enjoy a power. The and that their power depend upon the land. The more piece of land I am having, then I would be a more powerful person among the tribal societies. But and they enjoyed a administrative power. Even some tribal people, they have their own police, they have their own rituals, they are enjoying their lives as they want to live. But as the British started to administer India, they totally changed their lives. They take all the powers from the tribal peoples and they make new laws, and the tribal peoples, they have to obey that laws. So first laws that they have changed the administrative power of the tribal chief. जो उनके पास पहले पावर थी, वो अपने हिसाब से अपने रिचुअल्स बनाते थे, एक किनशिप को एंजॉय करते थे, एक अपनी सोसाइटी का ग्रुप का पूरी ट्राइबल जाति का क्लैन होता था जिसके पास ज्यादा पावर होती थी, वो अपनी सारी ट्राइबल जातियों में बड़ा एक एडमिनिस्ट्रेट करता था और साथ ही साथ वो चीफ माना जाता था ट्राइबल सोसाइटीज की. तो उसकी पावर को टोटली ब्रिटिशर्स ने इग्नोर कर दिया. उनको बोला कि आप तुम में से कोई चीफ नहीं है, तुमको हमारे भी यहाँ पे काम करना है, हम जो लॉस बनाएंगे यू हैव टू ओबे दैट लॉस. नो, यू हैव नो एडमिनिस्ट्रेटिव पावर, यू हैव नो पावर्स. Okay, you have to obey our laws and you have to administer, you have to teach other tribal groups and try to make them more civilized and try to convince them that they have to be settled at one piece of land, cultivate years after year that piece of the land. Clear? What happened to the shifting of cultivation? As the British started to administer their India in their own way, there was the one more group shifting cultivators who keep on shifting from one piece of land in forest to another piece of land. But as the British started administer India, they at once stopped their movement from one piece of land to another. They convinced them, they totally they force them to be settled at one piece of land and do not move from one piece of land in jungle to another piece of land. But this created a lot of problem for the tribal peoples who keep on shifting, because suppose if I am a shifting cultivator and I have cultivated this particular piece of land in jungle, it may be that piece of land may not be more fertile. I don't have nearby sources of water to irrigate my land. So in that case, if British insist me to be settled on that piece of land, it would be very difficult for me. Above all, whatever land we are cultivating, British impose a land revenue on that piece of land. Suppose if I cultivate one biga of land, piece of land, then I have to pay 5,000 per year, per month to the Britishers. That was the land revenue.
So if I am having 2 bighas mean I don't have proper means of irrigation, my land is not so fertile, I have no other means to fertile my land. So when my piece of land is not giving me good crop, after selling them into the market, I can have a good piece so that I can manage my further cultivation and also pay the land revenue to the Britishers. So if I am not able to manage all this, how I can cultivate that particular piece of land? So this created a lot of problem for the shifting cultivation. And instead of doing that, what they have done कि एक चीज होती है कि हमारी सहन करने की एक सीमा होती है. जब ब्रिटिश शिफ्टिंग कल्टीवेटर्स को लगा कि इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर अस टू कल्टीवेट द सेम पीस ऑफ लैंड, सो दे स्टार्टेड रिवोल्टिंग अगेंस्ट देम and उन्होंने रिवोल्ट करना शुरू कर दिया. द ब्रिटिश एफर्ट टू सेटल जम कल्टीवेटर वाज नॉट वेरी सक्सेसफुल. तो ब्रिटिश की एफर्ट थी कि जो जूम कल्टीवेटर्स हैं, जो शिफ्टिंग कल्टीवेटर्स हैं, हम इनको एक जगह पे सेटल करेंगे, वो उनकी एफर्ट जो थी सक्सेसफुल नहीं हुई. क्या रीजन था कि अगर तो मैं एक ही लैंड पे मुझे रहने के लिए इंसिस्ट किया जा रहा है और वो लैंड फर्टाइल नहीं है, उसके आसपास मेरे पास इरिगेशन के मींस भी नहीं है, तो फिर मैं कैसे उस पीस ऑफ लैंड को कल्टीवेट कर सकती हूँ, कैसे मैं ब्रिटिशर्स को लैंड रेवेन्यू पे कर सकती. इसके चलते जो शिफ्टिंग कल्टीवेटर्स थे उन्होंने रिवोल्ट किया. रिवोल्ट क्या होता है? विद्रोह किया कि हम इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, जिसके चलते ब्रिटिशर्स ने इनकी इस डिमांड को मानते हुए कुछ एक एरियाज में जूम कल्टीवेटर्स को अलो किया. पूरी इंडिया में नहीं किया, कुछ एक हिस्सों में कि आप जंगल में एक पीस ऑफ लैंड के बाद दूसरी पीस ऑफ लैंड पे मूव ऑन कर सकते हो. क्लियर? So that's about this. Now forest laws and their impact. The life of tribal groups, as you have seen, was directly connected to the forest. So changes in the forest laws had a considerable effect on the tribal lives. The British extended their control over all forests and declared that forests were state property. Some forests were classified as reserve forest for they produce good timber. इसको अंडरलाइन करो. The British extended their control over all forests and declared them forest were state property. Clear? इसको भी अंडरलाइन करो. Some forests were classified as the reserved forest for they produced timber which the British wanted. In these forests, people were not allowed to move freely, practice jhum cultivators, collect fruits or hunt animals. How were jhum cultivators to survive in such a situation? Many were therefore forced to move other areas in search of work and livelihood. फिर ब्रिटिशर्स ने फॉरेस्ट के रिलेटेड एक और लॉ इंट्रोड्यूस किया. वो लॉ उन्होंने ये इंट्रोड्यूस किया कि उन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि जितने भी फॉरेस्ट में रहने वाले ट्राइबल पीपल हैं, जो जंगल में नहीं आ सकते. क्यों नहीं आ सकते? कि बिकॉज दे क्लियर जंगल एज द रिजर्व. जब भी हम कोई चीज रिजर्व कर देते हैं, इट मींस इट इज नॉट ओपन फॉर अदर्स. इट इज रिजर्व फॉर द पर्टिकुलर पीपल, व्हिच पीपल हु हैव केप्ट दिस रिजर्व. अब जब हम ट्राइबल पीपल को ये बोलते हैं कि ये फॉरेस्ट रिजर्व्ड है, स्टेट की प्रॉपर्टी है, रिजर्व्ड मींस कि ये स्टेट की प्रॉपर्टी है, उसमें सिर्फ गवर्नमेंट एम्प्लॉयज की गवर्नमेंट की परमिशन से अंदर जा सकते हैं. जब हम ट्राइबल पीपल को जंगल में नहीं जाने देंगे, तो कैन वी थिंक ऑफ देयर सर्वाइवल? एब्सोल्युटली नॉट. बुशरा, तो एब्सोल्युटली नॉट. अब उनकी लाइफ को नहीं सोच सकते, क्योंकि जो ट्राइबल पीपल्स हैं वो जंगल में रहते हैं, जंगल की संतान है, जंगल से उनका सोर्स ऑफ लाइवलीहुड होता है. वो जंगल से ही अपनी कल्टीवेशन करते हैं, जंगल से ही फ्रूट्स वेजिटेबल्स कलेक्ट करके अपना सारा खाने का अरेंजमेंट करते हैं, जंगल से ही हर्ब्स और शर्ब्स को कलेक्ट करके मार्केट में बेच के उसके बदले में दूसरे अपनी खाने की चीजें लाते हैं. जंगल से ही अलग अलग प्रकार के फूल जैसे पलाश और कुसुम इकट्ठे करते हैं, फिर उसके कलर बना के मार्केट में बेचते हैं, और जिसको लेदर्स और वीवर्स खरीदते हैं और अपनी चीजों को डाई करते हैं. तो जब उनको जंगल में जाने नहीं दिया जाएगा, तो हाउ वी कैन थिंक दैट फॉरेस्ट पीपल, दिस ट्राइबल पीपल कैन सर्वाइव? सो इट वाज अ ग्रेट प्रॉब्लम. देन इसके चलते फिर मैनी जो थे ट्राइबल पीपल से, उन्होंने ये डिसाइड किया कि हम यहाँ पे रहेंगे नहीं, हम इस जगह को छोड़ के दूसरी जगह पे मूव ऑन कर जाएंगे. बट वंस द ब्रिटिश स्टॉप द ट्राइबल पीपल फ्रॉम लिविंग इनसाइड फॉरेस्ट, दे फेस्ड अ प्रॉब्लम. लेकिन जब ब्रिटिशर्स ने ये लॉ बनाया, इस लॉ ने ब्रिटिश के लिए ही प्रॉब्लम क्रिएट कर दी. क्यों? क्योंकि उन्होंने जंगल में ट्राइबल लोगों का जाना बंद कर दिया. अब जंगल की लकड़ी ब्रिटिशर्स को, उन्होंने जंगल को रिजर्व क्यों किया था? क्योंकि ब्रिटिशर्स को लकड़ी चाहिए होती थी, जिस तरह की वो चाहते थे वो वैसी लकड़ी वहां पे उगवाते थे. उस लकड़ी को फिर वो ब्रिटेन में एक्सपोर्ट करते थे, बेचते थे. क्यों? क्योंकि वहां पे जो नेवल शिप्स होते हैं ना, जहाज होते हैं, वो बनते थे, साथ ही साथ रेलवे के स्लीपर बनते थे.
साथ ही साथ तुमने देखा रेलवे ट्रैक के बीच में फिश प्लेट होती है। जो रेलवे का ट्रैक होता है उसमें बीच में गैप रखने के लिए लकड़ी के बड़े बड़े लॉक्स लगाए जाते हैं, जैसे फिश प्लेट बोलते हैं। उसके लगाने से क्या होता है कि गर्मियों और सर्दियों में जब लोहे में कंट्रैक्शन और एक्सपेंशन होता है, गर्मियों में जब इसमें एक्सपेंशन होता है तो ट्रैक को जो वो एक लिमिट में पूरा बांध के रखता है। फिर ट्रेन के अंदर स्लीपर होते हैं हमारे सोने के लिए, उस स्लीपर्स को किसके बनती है? वो लकड़ी के बनती है। और वो लकड़ी वो कहाँ से लेते थे ब्रिटिशर्स? इंडिया से। अब लकड़ी तो उग गई, लेकिन उस लकड़ी को कट करके पेपर चाहिए होती है। जब उन्होंने फॉरेस्ट में ट्राइबल्स का आना बंद तो उनके लिए भी प्रॉब्लम हो गई कि अब हम लकड़ी कहाँ से किससे कटवाएंगे। जब ब्रिटिश को रियलाइज हो गया कि हमारे लिए प्रॉब्लम बना दी है, तो ब्रिटिशर्स ने फिर क्या किया, कुछ एक हिस्सों में जो आदिवासी लोग थे, ट्राइबल पीपल्स थे, उनको रहना अलो कर दिया कि तुम यहाँ रह सकते हो, इस हिस्से में शिफ्टिंग कल्टीवेशन भी कर सकते हो और साथ ही साथ फ्रूट्स और नट भी इकट्ठे कर सकते हो। लेकिन बदले में जब भी हमें डिमांड होगी लेबर की, हमें लेबर चाहिए होगी लकड़ी कट करने के लिए, तो आपको हमारे बिहाफ पे काम करना पड़ेगा। क्लियर? यस मैम। फिर उसके बाद आया आगे मैनी ट्राइबल पीपल। Okay, beta. Many tribal peoples reacted against the colonial forest law. They disobeyed the new rules, continued with the practices that were declared illegal. At the times, most rose in open rebellion. Such was the, इसको underline करो, such was the revolt of Songram Sangama in 1906 in Assam and the forest satyagraha of 1930s in the central provinces. लेकिन धीरे धीरे क्या हो गया कि ट्राइबल्स पीपल के लिए लाइफ जो थी बड़ी टफ होती गई और उन्होंने इस चीज को रियलाइज कर लिया कि हमारा जीवन जो है जंगल के बिना पॉसिबल नहीं है, हमें कोई भी जंगल में जाने से नहीं रोक सकता। अब हम ब्रिटिशर से किसी भी लॉज को, वी आर नॉट सपोज्ड टू बी accept any British laws. Now they decided to be revolt against them, and that was the biggest revolt. First revolt was Songra Sangama in 1906. That was done by the tribal peoples of Assam, and second was the revolt forest satyagraha of 1930s in the central provinces. Here these two revolts. The problem with tribal groups found that traders and money lenders were coming into the forest and more often wanting to buy the forest produce, offering cash loans and asking them to work for wages. It took tribal groups some time to understand the consequences of what was happening. अब जो मनी लेंडर थे, जो मैंने शुरू में पढ़ाया था कि जो इनको पैसा उधार देते थे, बदले में एक हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट इनसे चार्ज करते थे। धीरे धीरे इन्होंने क्या किया कि देखा कि ट्राइबल के लोग हैं, जंगल से तो बहुत सारे बेनिफिट है, इन्होंने भी जो हमारे मनी लैंडर्स थे, इन्होंने जो पैसे वाले थे, इन्होंने भी क्या किया कि जंगल की तरफ मूव करना शुरू कर दिया। जब ये जंगल में आए तो इन्होंने आदिवासी लोगों को बोला कि ये लो हम आपको एक लोन देते हैं, आप उस लोन के लेके कल्टीवेशन करो, हमारे लिए खेतीबाड़ी करो और साथ ही साथ जंगल से चीजें इकट्ठी करो। ये सब करने के बाद जब आपका फसल तैयार हो जाएगी, हम आएंगे और आपसे वो ले जाएंगे, फसल ले जाएंगे और बदले में हम आपको एक वेजेस भी देंगे। अब ट्राइबल पीपल्स थे, अनपढ़ थे, वो बड़े खुश हो गए कि हमें हमारे वेजेस भी मिलेंगे और साथ ही ये हमें काम करने की, खेतीबाड़ी करने के लिए लोन भी दे रहे हैं। लेकिन अब वो लोग इतने अवेयर नहीं थे, लेकिन धीरे धीरे उनको ये प्रॉब्लम समझ आने लगी कि ये लोन एक ऐसा विशियस साइकिल है जिससे हम पीढ़ी दर पीढ़ी we can't be out of it. How? Because whatever loan they are giving, लोन मुझे दे रहे हैं, उस लोन के चलते मैंने खेतीबाड़ी कर दी। खेतीबाड़ी करने के बाद जो फसल मेरे पास आई ना, उस फसल को अगर मैंने उगाने में 100 रुपए इकट्ठा किया ना, तो जो मनी लैंडर्स थे वो मुझे उसके 50 रुपए भी नहीं दे रहे थे, इतने सस्ते में वो मेरे से खरीद लेते थे और उसको मुझे मार्केट में जाके 10 गुना ज्यादा दाम पे बेचते थे। अब जब मुझे लगाने, पूरी खेतीबाड़ी करने में मैंने 100 रुपए का लोन उठाया और पूरी खेतीबाड़ी करने के बाद मेरे पास 50 रुपए आ रहे हैं, तो मैं 100 रुपए का लोन कहाँ से पे करूंगी और अगली खेतीबाड़ी कहाँ से करूंगी? तो ये एक ऐसा चक्रव्यूह था जिसको समझते समझते ट्राइबल पीपल को दे हैव टू टेक लॉट ऑफ टाइम, and when they understand, they accept it, they deny it. No, we are not ready to work for you, we are not ready to accept these wages, we are not ready to do any work for you. For whom? For money lenders. So let us consider the case of the silk growers. अब उसकी इन्होंने एग्जांपल दी है कि जो सिल्क ग्रोवर थे, सिल्क उगाते थे। सिल्क उगाया जाता है? नहीं, सिल्क कलेक्ट किया जाता है। कहाँ से सिल्क कलेक्ट किया जाता है? सिल्क वॉर्म से। सिल्क जो वॉर्म होते हैं, सिल्क उगाने वाले कीड़े होते हैं, वो क्या करते हैं, अपना सलाइवा बाहर निकालते रहते हैं
और सलाइवा उनके लिपट लिपटता जाता है। जब लिपट बहुत ज्यादा हो जाता है, फिर वो सिल्क की कीटों में इकट्ठा किया जाता है और फिर वो उनको मार्केट में बेचते हैं। फिर उसको कोकून, उस सलाइवा को क्या बोलते हैं, कोकून, कोकून को अलग किया जाता है। अब जो ट्राइबल लोग थे जो सिल्क वॉर्म इकट्ठे करते थे, इन्होंने क्या किया कि जो मनी लैंडर्स थे उनके पास आए और उनको बोलने लगे कि हम आपको लोन देते हैं, आप हमारे लिए ये कोकून इकट्ठा करो, जब वो कोकून इकट्ठा हो जाएगा हम आएंगे और आप से कोकून ले जाएंगे। इन्होंने ऐसा किया कि जो जितने भी सिल्क ग्रोवर्स थे उनसे जितने भी कोकून होते थे, उस कोकून को ये मात्र 3 रुपए में आदिवासी लोगों से ले जाते थे और मार्केट में उसको वो 10 गुना ज्यादा रेट पे बेचते थे। अब उसको सिल्क के लिए जो लोन दिया है, वो लोन इतना हैवी होता था कि पूरे सिल्क के कीड़े को बेचने के बाद, कोकून को बेचने के बाद भी वो लोन ऊपर से उतरता नहीं था। इस चीज को समझते लेने के लिए उनको टाइम लगा, लेकिन जैसे ही टाइम लगा उनमें ये अवेयरनेस आई कि ये जो सिल्क ग्रोवर जो ये हमारा लोन है, ये एक ऐसा विशेष साइकिल है जिससे हम कभी भी बाहर नहीं आ सकते। जिसके चलते उन्होंने जहाँ तो इसके खिलाफ रिवोल्ट किया, अगर वो रिवोल्ट में सक्सेसफुल नहीं हुए तो उन्होंने उस जगह को छोड़ के दूसरी जगह पे मूव कर दिया। The search for work. The plight of the tribal who had to go far away from their homes in search of work was even worse. From the late 19th century, tree plantations started coming up and the mining became an important industry. Tribal were recruited in large numbers to work in the tea plantation. Recruited क्या होता है? भर्ती। जब कोई काम होता है तो हम ये अपने आप को रिक्रूट करते हैं ना, एप्लीकेशन देते हैं, फॉर्म्स भरते हैं, तो ये सारा क्या होता है, उसे क्या बोलते हैं, रिक्रूटमेंट। ये सर्विस से रिलेटेड होता है जब हम किसी चीज के लिए भर्ती होते हैं। कहते हैं लेकिन जो अपनी जगह को छोड़ के दूसरी जगह पे काम करना, ये भी आदिवासी लोगों के लिए इजी नहीं था। जैसे जैसे 19th सेंचुरी शुरू हुई तो 19th सेंचुरी खत्म होने पे क्या होने लगा कि जो टी प्लांटेशन का काम बहुत ज्यादा आने लगा, क्योंकि ब्रिटिशर्स इंडिया में थे। अब चाय का जो टेस्ट था हम लोग ब्रिटिशर्स ने डेवलप किया था, क्लियर। तो चाय उगाने के लिए चाय का प्लांटेशन होने लगा, बड़े बड़ी जगह पे खाली चाय पत्ती उगाई जाती थी। अब उस काम के लिए लेबर चाहिए होती है, साथ ही साथ माइनिंग, ये भी सर्च होने लगी कि इंडिया में कहाँ कहाँ पे माइंस हैं। अब माइंस को डग आउट करने के लिए भी लेबर चाहिए, तो इन सारी चीजों के लिए लेबर कहाँ से आती थी, जंगलों से, आदिवासी एरिया से। इन लोगों ने जब दूसरी जगह पे जाके काम करना शुरू कर दिया तो वहां पे भी इनके लिए जो सिचुएशन थी बहुत ही वर्स थी। वर्स इसलिए की थी कि लोग इतने अवेयर नहीं थे। अब जो इसमें से एक कॉन्ट्रैक्टर आता और गांव के लोगों को बस में, गाड़ी में भर के ले जाता, वहां पे ले जाके इनको बड़े स्लम एरियाज में रखा जाता था। जो इनके डेली वेज होते थे उसमें से भी इनको कुछ नहीं मिलता था। एक बार ही अपना घर छोड़ के जाते थे तो फिर दोबारा ये वापस नहीं आ पाते थे, जिसके चलते कि ट्राइबल्स लोगों की जो लाइफ थी बहुत ही प्लाइट में होता है कि दयनीय, बहुत ही देख के उसको दया आती थी। A closer look. Through the 19th century and 20th centuries, tribal groups in different parts of the country rebelled against the changes in the laws. अब क्या हो गया कि जैसे ही हमारी 19th और 20th सेंचुरी, 19 खत्म हुई और 20th शुरू हुई, तो जो फॉरेस्ट की पीपल्स है, ट्राइबल्स पीपल्स है, वो बिल्कुल अवेयर हो चुके थे परिस्थितियों से। उनको समझ आ गया था कि हर एक लॉ जो है वो हमारी स्थिति को बैड टू वर्स कर रहा है और अब हम इन लॉज को नहीं मानेंगे। साथ ही साथ जो बिरसा का मिशन था वो भी काफी ज्यादा फैलता जा रहा था। बिरसा जो था मुंडा जाति का, बिगिनिंग में पढ़ा था ना, बिरसा जिसके पास मिराकुलस पावर्स थी, Yes, ma'am. वो भी Yes, काफी ma'am. प्रोपेगेंडा हो रहा था। उसने भी लोगों को समझाना शुरू कर दिया कि हम कहाँ के रहने वाले हैं, ये जो ब्रिटिशर्स हैं, यूरोपियंस आए हैं, डिकूज हैं, बाहर से आए हैं और ये हमारे ऊपर रूल ओवर कर रहे हैं। हमें अपनी जमीन पे खुद की लड़ाई लड़नी है, हमें इनसे अपना देश वापस लेना है। इस चीज को भी बिरसा ने लोगों को समझाना, उसका प्रोपेगेंडा करना शुरू कर दिया। अब जो था सारी ट्राइबल्स पीपल्स ने दे डिसाइडेड टू रिवोल्ट अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स। A closer look. Through the 19th and 20th century, tribal groups in different parts of the country rebelled against the changes in the laws, the restrictions on their practices, the new taxes they had to pay, and the exploitation by traders and the money lenders. कहते हैं कि जितने भी ट्राइबल्स पीपल्स थे, इन्होंने रिबेल करना शुरू कर दिया कि हम किसी मनी लैंडर से लोन नहीं लेंगे, उनसे कोई उनको रेट ऑफ इंटरेस्ट पे नहीं करेंगे और हमारी शिफ्टिंग कल्टीवेटर्स के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस है उसको भी ओबे नहीं करेंगे और हमारे जो रिचुअल्स हैं उसके ऊपर जो ब्रिटिशर्स चेंजेस कर रहे हैं, हम कोई भी चेंजेस को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। इसको अंडरलाइन करो। द कोल्स रिबेल्ड इन 1831-32। संथाल जो थे ना, ये कोकून इकट्ठा करते थे ट्राइबल्स लोग के,
rose in the revolt in 1835. The Bastar rebellion in central India broke out in 1910 and the Valli revolt in Maharashtra in 1940. The movement that Birsa led was one such movement. बेटा इसी तरह ये सारे रिवोल्ट शुरू हो गए, इसको अंडरलाइन करो। और जो बिरसा का था उसका भी एक ऐसा ही ये रिवोल्ट था जो लोगों को समझा के उन्होंने चेंजेस शुरू किए थे। बिरसा मुंडा, बिरसा पास हमने पढ़ा था कि मुंडास की फैमिली में पैदा हुआ था। वो बड़े, उसके जो पापा थे बड़े गरीब थे। ही ग्रू अप अराउंड द फॉरेस्ट ऑफ बोंडा। वो बड़ा कैसे हुआ? जहां पे वो रहते थे गांव में, बोंडा में, वहां पे वो बकरियों को चराने ले जाता था, साथ ही साथ बांसुरी बजाता था। और जो लोकल अखाड़ा होते हैं ना गांव में, जो खुला सा मैदान होता है उसे अखाड़ा बोलते हैं, जहाँ पे समय समय पे छोटे छोटे फंक्शंस होते हैं, क्या होती है, अखाड़ा बोलते हैं उसको। तो वहां पे वो डांस करता था, डांस करके लोग उसको देखते थे और बदले में उसको पैसे देते थे। फॉरेस्ट forced by the poverty, his father had to move from place to place looking for work. कहते उनके घर में पॉवर्टी थी, भुखमरी थी। भुखमरी मीन्स कि उनको दिन में 2 टाइम का खाना भी नसीब नहीं होता था, जिसके चलते उसके पापा एक जगह से दूसरी जगह पे मूव ऑन करते रहते थे। अब जैसे वो मूव ऑन करते रहते थे तो साथ ही साथ मूव ऑन करती थी। तो मूव ऑन करने की वजह से एक जगह का कल्चर देखने को मिलता था, दूसरी जगह का कल्चर देखने को मिलता था। तो इन सारी चीजों का बिरसा के ऊपर बहुत ज्यादा इफेक्ट हुआ। टॉप ऑफ द गोल्ड। और इसी तरह बिरसा जब अलग अलग जगह पे लोगों के कांटेक्ट में आता था तो वो लोगों की बातें सुनता था। तो वो देखता था कि अक्सर लोग बातें करते हैं कि पहले ऐसा होता था, पहले हमारा सतयुग था, हम लोग सारे मिलके रहते थे, हमारी अपनी जमीन होती थी, हम अपनी होते थे, हम पे कोई लैंड रेवेन्यू नहीं होता था, हम अपनी जमीन को खुद खेती बाड़ी करते थे, कोई सुखी सुख से रहते थे, एक दूसरे की मदद करते थे। तो ऐसी जब बिरसा उन लोगों से बातें सुनता था, तो जैसे बिरसा बड़ा हुआ तो वो मिशनरी स्कूल कौन से होते हैं, जो क्रिश्चियन पीपल होते हैं ना, ये पुअर लोगों के लिए स्कूल खोलते हैं, जैसे क्या बोलते हैं, मिशनरी स्कूल्स। तो जैसे ही वो बड़ा हुआ तो वो मिशनरी स्कूल्स में जाने लगा। जब वो वहां जाने लगा तो वो मिशनरी के सरमन्स, उपदेश सुनने लगा। स्कूलों में जिंदगी जाते थे। They too he heard, he said that it was possible. और वही स्कूल में बिरसा ने आपने उनसे सरमन्स में, उपदेशों में ये सुना कि हम जो आदिवासी लोग हैं हमारे लिए पॉसिबल है क्या दोबारा उस गोल्डन आना जो पहले था। तो वो कैसे होगा? वो तब होगा कि जब हम सारे लोग आपस में मिलजुल के रहेंगे। हमारे जो खेत है इसके ऊपर कोई एम्बैंकमेंट्स ना हो, मीन्स सबका खेत, किसी का 2 बीघा, किसी का 1 बीघा, ऐसा ना हो कि हम सारे मिलके एक बड़ा खेत बनाएंगे, सारे मिलजुल के उस पर खेती बाड़ी करेंगे, जो भी हमारी आउटपुट होगी, क्रॉप होगी, सारे उसको मिलके बांटेंगे। जो भी हमारे पानी के झरने हैं, कोई नहीं बोलेगा कि ये झरना मेरे खेत में है, तू मेरे खेत का पानी इस्तेमाल नहीं। नेचुरल स्प्रिंग को टैप नहीं करेंगे, नल नहीं लगाएंगे, हर एक के लिए ओपन होगा। जब हम आपस में एक दूसरे का लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे, किसी को हम सॉर्सरी यातनाएं नहीं देंगे। और फिर क्या होता है, काला जादू, जो हम एक दूसरे पर जादू टोने करते हैं ना, वो सब कुछ बंद कर देंगे, अच्छी अच्छी बातें करेंगे, शराब पीना बंद कर देंगे, एक दूसरे की मदद करेंगे। जब हम ऐसा करेंगे तो हमारा दोबारा से वो गोल्डन युग आ जाएगा। अब जब बिरसा ने जब ऐसे लोगों को जाना शुरू किया तो बहुत सारी मतलब नंबर्स में पीपल जो थे, दे बिकेम टू बी द फॉलोअर्स ऑफ द। जैसे ये चीज हुई, लोग बिरसा के फॉलोअर्स बनने लगे, उसकी बात को मानने लगे, बिरसा की मूवमेंट को ज्वाइन करने लगे, तो ब्रिटिशर्स के लिए तो बहुत प्रॉब्लम हो गई, उनके तो पेट में दर्द शुरू हो गई। क्यों दर्द शुरू हो गई? क्योंकि ब्रिटिशर्स की पॉलिसी थी डिवाइड एंड रूल। उनको पता था कि अगर हमें इंडिया के ऊपर रूल करना है तो हमें इंडियन पीपल्स को डिवाइड करके रखना पड़ेगा। तो डिवाइड हमें कैसे करते थे? कभी हमारे में आपस में कास्ट इनइक्वालिटी के लिए झगड़े उठा देते थे, जाति पाति के लिए, अमीर गरीब के लिए, क्योंकि उस समय हम मेंटली इतने अवेयर नहीं थे, सारे लोग पढ़े लिखे नहीं थे, छोटी छोटी बातों पे हम एक दूसरे पे झगड़े पे आ जाते थे। इसी चीज को ब्रिटिशर्स ने फायदा उठाया। जैसे ब्रिटिशर्स ने देखा कि बिरसा की मूवमेंट बहुत रंग ला रही है, हर जगह से ब्रिटिशर्स जो ट्राइबल पीपल है मुंडा को फॉलो करना शुरू हो गए हैं, तो इसके चलते तो हमारे लिए तो प्रॉब्लम हो जाएगी। इन्होंने क्या किया, इमीडिएटली बिरसा को पकड़ लिया, उसको जेल में डाल दिया। और अनफॉर्चुनेटली बिरसा को जेल में डालते उसको वहां पे उसको कॉलरा हो गया और उसकी वहां पे डेथ हो गई। लेकिन उसकी जैसे बिरसा की डेथ हो गई तो उसकी मूवमेंट जो था, जितनी पहले जोर शोर से चल रही थी ना, उसकी जो थी पावर थी वो थोड़ी फेड हो गई। लेकिन बिरसा की मूवमेंट ने ब्रिटिशर्स को ये रियलाइज करवा दिया कि हम कहने के लिए बेशक ये आदिवासी लोग हैं, लेकिन ये आदिवासी नहीं है,
ये भी सोचने समझने की शक्ति रखते हैं और इसको वो एक्सप्लॉइट नहीं कर सकते हैं। बिरसा ने अपनी लड़ाई के लिए अपना एक स्लोगन भी बनाया था, उसका एक लोगो था व्हाइट फ्लैग। बिरसा का क्या था? व्हाइट फ्लैग। और when the Birsa was released in 1807, उसको जेल में डाल दिया, लेकिन 1897 में जब ब्रिटिशर्स बाहर आए तो उसने दोबारा से अपने मूवमेंट को स्टार्ट करना शुरू कर दिया। He used traditional symbols and language most people use, urging them to destroy Ravana. और उन्होंने ब्रिटिशर ने लोगों को समझाया कि हम सबको इकट्ठा मिलना है, और ये जो रावण है, रावण कौन है यहाँ पे? दिक्कूस। दिक्कूस कौन है? यूरोपियन पीपल जो बाहर से आए हैं, हमें इनको पूरी तरह से खत्म करना है। और इन्होंने क्या किया कि सब लोग इकट्ठा होकर जगह जगह पे जाते हैं और जहां पे ब्रिटिश के पुलिस स्टेशन बने थे उनको डिस्ट्रॉय करना शुरू कर दिया, इनके लोगों को मारना शुरू कर दिया यूरोपियंस के, और जो मनी लैंडर्स थी उनकी प्रॉपर्टी को भी इन्होंने अपने कब्जे में लेना शुरू कर दिया। अब ये लोग इतने दुखी हो चुके थे कि जो आदिवासी की औरतें थी ना, ये भी शुरू हो गई। अब उस समय हमारे पास तो हथियार नहीं थे, तो औरतों ने क्या किया, घर का बेलन, कढ़ाई, तवा लेके उनके ऊपर अटैक कर दिया। और 1900 में बिरसा की कॉलरा से डेथ हो गई और उसके मरते ही इस मूवमेंट को थोड़ा एक रोक मिल गया। लेकिन उन्होंने बिरसा की इस मूवमेंट में ब्रिटिशर्स को ये सोचने में मजबूर कर दिया कि ये जो लैंड है, कॉलोनियल गवर्नमेंट टू इंट्रोड्यूस लॉ सो दैट द लैंड ऑफ द ट्राइबल्स वुड नॉट बी टेकन ओवर बाय द दिक्कूस। उन्होंने सबसे पहले ये मजबूर कर दिया कि ब्रिटिशर्स को इस तरह के लॉस बनाने हैं कि जो हमारी जमीन है वो हमसे कभी भी ना छीनी जाए। Secondly, it showed once again that tribal people had the capacity, और इसने ये भी बता दिया कि ट्राइबल पीपल ट्राइबल हैं क्योंकि वो जंगल में रहते हैं, लेकिन वो जंगली दिमाग से नहीं है, उनके पास दिमाग है, वो भी सोच सकते हैं कि हमारे साथ क्या गलत हो रहा है, क्या सही हो सकता है। क्लियर? सो दैट्स ऑल रिगार्डिंग योर चैप्टर। अब अपना चैप्टर रीड करो, जो भी डाउट्स हैं मेरे से व्हाट्सएप ग्रुप पे पूछो। क्लियर? Yes, ma'am. अब मैं ये अपनी चैनल पे भी डाल दूंगी मैं रिकॉर्डिंग। Okay, ma'am. Okay, ma'am. Bye. बाय बाय।